Okay. Recording start करके make me the host. चलो स्क्रीन नजर आ रही है सबको मेरी? Yes, Javed, yeah, it is visible. ओके चलो फिर अच्छा तो in the course of calculus the first topic that we would be covering is of functions and हम लोग functions के within जो चीजें देखेंगे वो itself functions की definition, the definition of domain and range, and then we would move on to the graphical representation and the identification of functions. We would also see the types of functions. So there are basically two categories: algebraic functions and transcendental functions. We would also be looking into the subtypes of these functions. Next, we would be seeing translation and reflection in functions. We would then see what we mean by piecewise functions and what are explicit and implicit functions. So start करते हैं functions की definition के साथ. अच्छा, so f is a function of x if it takes x as input and results in a certain output y. We can write here y equals f of x. Note that x mapped to y should not be a one-to-many mapping. Let's see what we mean by that. So say we have a set x and a set y. X के elements होंगे x1, x2 up to xn. Y के elements हैं y1, y2 up to ym. And x is mapped to y by g. Okay, so let us assume that x1 maps to y1
and x1 also maps to y2. So what we can infer from here is that y1 equals g of x1, and we can also infer that y2 equals g of x1. Or you can say that if you input x1 to function g, you get two outputs, y1 and y2. So here we can clearly see that this contradicts with the definition of a function. So g is not a function. अच्छा, अब एक एग्जाम्पल थोड़े से देने की कोशिश करती हूँ मैं of what might be a function. Say for example कि you have a juice making machine. Juice making machine है आपके पास ये एक, and you can feed this juice making machine different fruits. Say for example, I input an apple. So what would I receive as an output is apple juice. So अगर मैं एक Malta input करती हूँ तो I would get orange juice, and in correspondence with every fruit there would be a certain kind of juice that I would get. But कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे एप्पल से एप्पल जूस भी मिल रहा है और ऑरेंज जूस भी मिल रहा है. So this juice making machine here is acting as or can be considered as a function if we start talking in the terms of mathematics. Achha. So moving on, let's just quickly define what domain is and what range is, क्योंकि ये definitions जो हैं later on हमारे काम आएंगी. So all possible values of x that can be put in the function f of x such that f of x is not undefined, indeterminate, or complex. All such possible values of x are included in the domain of f of x. अच्छा, हम आगे बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे एंड उससे ये डेफिनेशन और ज्यादा क्लियर हो जाएगी. Moving on to the definition of range. All possible outcomes मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ of f of x. हाँ पूछो. मैम, ये आपने कहा है कि undefined and indeterminate and complex, undefined and indeterminate से क्या मुराद है? अच्छा, so undefined से हमारे पास मुराद है कि आपके पास जो कह लो कि if your result is infinite is undefined जो है ना, infinity को भी कहते हैं, ठीक है, कि आपके पास जो है आपका result it starts approaching infinity या 1/0 जिसे कह लो 1/0 tends to infinity, ठीक है. तो that is something that we cannot define in terms of real numbers. We cannot define 1/0 in terms of real numbers. रियल नंबर लाइन पे इन्फिनिटी नहीं आता, लेकिन रियल नंबर लाइन जो है ना इन्फिनिटी को अप्रोच करती है. तो अनडिफाइंड से मुराद मेरी इन्फिनिटी है. इनडिटर्मिनेट से मेरी मुराद जो है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं
मुख्तलिफ कह लो कि जैसे आपके पास 0 by 0 है, you don't know what 0 over 0 equals. You cannot cancel 0 by 0 to say that it's 1. Infinity by infinity आप नहीं बता सकते क्या है. आप ये नहीं बता सकते कि आप ये भी नहीं बता सकते कि 0 power 0 क्या है. आप ये नहीं बता सकते कि infinity minus infinity क्या है. और इस तरह की और भी फॉर्म्स होती हैं, 0 times infinity, ये सब जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं. और मैंने कम्प्लेक्स नंबर्स क्यों एक्सक्लूड करने का कह रही हूँ मैं डोमेन से, वो इस वजह से कि हम लोग रियल नंबर्ड फंक्शंस की बात कर रहे हैं, रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं. तो we're not dealing with complex functions. There is something called as complex functions, but वो अगर आप complex analysis का कोर्स पढ़े हो तो आप उसमें उस चीज को इन डेप्थ देखोगे. यहाँ पे हम लोग जहाँ भी complex numbers का जिक्र आएगा तो we would just ignore that. We are trying to stay within the domain of real numbers. So this is what is meant by these three terms. Oh my god. स्क्रीन शेयर बंद हो गया. Yep. टैब के साथ टैब बंद हो जाए तो ये इशू होता है. अच्छा, खैर आई वाज गोइंग टू कम टुवर्ड्स दिस लेटर ऑन, बट अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया, इधर ही बता दिया मैंने. तो मैम Okay. आसान अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि लाइक जिस पे भी जो भी अगर मैं एक x की वैल्यू दूं तो उसमें मेरा फंक्शन मुझे कुछ बाहर नहीं दे रहा है, या फिर मतलब वो फंक्शन ही कुछ गड़बड़ा जा रहा है, तो उस पे वो डिफाइन मतलब उस पे वो फंक्शन मैं नहीं कह सकता, वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं डोमेन में. हाँ बिल्कुल आप ये कह सकते हो. ओके, थैंक यू. Okay, so range क्या होती है? All those possible outcomes of f of x when all possible values of x are tried. So all of such possible outcomes, इनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, are included in range. So let's now move forward to the graphical representation. So आप क्या करते हो कि आपका जो आप 2D प्लेन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हो, एक्स एक्सिस जो है वो आपके इनपुट्स को शो करता है एंड वाई एक्सिस इज योर आउटपुट्स, और वाई आप इसको एफ ऑफ एक्स एक्सिस भी कह सकते हो. सो से फॉर एग्जांपल ये एक सर्टेन फंक्शन है आपके पास. अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स की जितनी वैल्यूज हैं इस एग्जांपल में दिस इज द डोमेन, एंड ये सारी जितनी वैल्यूज हैं दिस इज द रेंज हियर. अच्छा, ग्राफ से हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे पास एक सर्टेन ग्राफ जो है वो एक फंक्शन है या नहीं है? सो व्हाट यू वुड बी डूइंग इज you would do a vertical line test. ठीक है, अब मैं कुछ ग्राफ्स बनाने लगी हूँ एंड देन मैं आप लोगों से पूछूंगी कि क्या ये ग्राफ्स फंक्शंस हैं या नहीं. सो व्हाट वर्टिकल लाइन टेस्ट इज के इफ यू ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, let me do this one for you. If you draw a vertical line and it cuts the graph at more than one point, if it cuts the graph at more than one point, then the graph is not a function. तो इस सिनेरियो में आप देखो तो it's cutting the graph at this point and at this point. तो a graph of a circle is not a function.
तो this is not a function. अब मैं एक और ग्राफ बनाती हूँ. Tell me, would this be a function? Would this graph be a function? Vertical line test लगाना है, and we have to see के it does not intersect. If it does not intersect more than once, if the vertical line that crosses the graph does not intersect more than once, then the graph would be a function. अच्छा, so अगर मैं यहाँ पे vertical line लगाती हूँ, so ये मैंने line लगाई, and it is intersecting only at this certain point. So since it is intersecting the graph. Hello. Yes, yes. मेरी शायद मीटिंग में लोग वेटिंग रूम में मतलब आए हुए हैं. आप होस्ट ना तो उनको अलाउ कर दो, शायद लोग आए हुए हैं. अच्छा ठीक है, मैं उनको अलाउ प्लीज चेक इट आउट. ओके. ओके. All right. So यहाँ पे ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है बाय दिस सर्टेन वर्टिकल लाइन, जो ग्रीन कलर की वर्टिकल लाइन लगाई है मैंने. एंड अगर मैं इसको किसी भी लोकेशन पे लगाऊं, कहीं भी ले जाऊं, या इस वर्टिकल लाइन को फॉर एग्जांपल मैं इस लोकेशन पे भी लगाऊं या इधर लगाऊं, इट विल ओनली इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. तो ये ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन. नाउ लेट मी ड्रॉ अनदर ग्राफ. से फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का ग्राफ बनाती हूँ मैं. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. So now can someone tell me if this is a function or not a function? Vertical line test में लगाऊंगी तो क्या होगा? अमार बताओ क्या होगा? मेरे ख्याल से ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज जो एक वर्टिकल लाइन जो इसके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन में लगाऊं तो फिर 2 पॉइंट्स टच करेंगे, तो आई थिंक इट्स नॉट अ फंक्शन. हाँ बिल्कुल, इट्स नॉट अ फंक्शन क्योंकि द वर्टिकल लाइन टेस्ट इज शोइंग के दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रही है, तो दिस ग्राफ इज आल्सो नॉट अ फंक्शन. अच्छा, तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे. हमारे पास दो मेन टाइप्स थी, एक अलजेब्राइक फंक्शंस और दूसरे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस. तो अलजेब्राइक फंक्शंस क्या होते हैं? अलजेब्राइक फंक्शंस पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं. एंड इससे क्या मुराद है अभी हम ये आगे देखते हैं. सो व्हाट we have in polynomial functions is they are made up with the help of different algebraic operations. तो ये सारे algebraic operations लिखे हैं मैंने ब्रैकेट्स में. एंड इसके अलावा रैशनल फंक्शंस भी algebraic फंक्शंस के अंडर आ जाते हैं. ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं जो वो वाले सारे फंक्शंस के जो कि अलजेब्राइक ना हो. सो नॉन अलजेब्राइक फंक्शंस आर ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस. अच्छा, इसके एग्जांपल्स में वी हैव
trigonometric functions, inverse trigonometric functions, logarithmic functions, exponential functions, etc. इस तरह के सारे फंक्शंस जो हैं वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम अलजेब्राइक फंक्शंस की सारी सब टाइप्स को देख लेते हैं। Let us first talk of power functions. तो power functions are of the form y equals x power a. और इसके भी आगे फर्दर 3 केसेस हैं जो कि डिस्कस करूंगी मैं। केस A is when a is a number n such that n is a positive integer. अच्छा, before I move for further, कोई मुझे बता सकता है कि क्या the number 0 is the number 0 a positive integer or not? Anyone? जीरो तुक्का ही लगा लो यार, तो कुछ नहीं होता। ना पॉजिटिव ना Zero- नेगेटिव। सवाल Zero- आप कर सकते हैं दोबारा से। जीरो तो अच्छा, बस जीरो सवाल है। मेरा ये है कि जीरो जो है, सवाल मेरा ये है कि इज जीरो ए पॉजिटिव इंटीजर और नॉट? अच्छा, तो जीरो जो है वो पॉजिटिव जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना नेगेटिव इंटीजर होता है। जीरो इज न्यूट्रल इंटीजर, ठीक है। तो जब भी मैं कहती हूँ ना कि n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। अगर मैं जीरो को भी इंक्लूड करना चाहूँ कहीं पे, मैं कहना चाहूँ कि जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी इंटीजर्स हैं, तो या तो मैं कहूंगी कि n belongs to whole numbers, या तो मैं ये कह सकती हूँ कि n belongs to non negative numbers, ठीक है। नॉन नेगेटिव नंबर्स से मुराद है कि all the positive numbers and okay, so हम लोग पहला केस देख रहे हैं when power functions में कि when a equals n and n is a positive integer, n is some positive integers, तो ये हमारे पास बन जाएगा y equals x power n। और हमारे पास आगे 2 केसेस हैं। एक केस है when n is even and दूसरा केस है when n is odd। तो हम लोग पहले एक केस अलग से देख लेते हैं कि अगर n is equal to 1 लेती हूँ मैं, तो मेरे पास इक्वेशन बनती है y is equal to x की, और इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, this is x axis, this is y axis, और हमारे पास ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ये 45 डिग्री का एंगल पे बनेगा। तो इसकी स्लोप जो है वो हमारे पास 1 होती है। और अच्छा, अब n is equal to even केस और n is equal to odd केस के लिए देखते हैं कि ग्राफ्स किस तरह से बनते हैं। n is equal to even केस में what we have is कि we get a graph of this sort, or if this is 1, this is -1 and this is 1, sorry, तो ये पॉइंट्स मैं अगर हाईलाइट कर दूं, तो अगर ये ग्राफ जो है y इक्वल एक्स स्क्वायर का है, तो
y इक्वल x बार 4 का ग्राफ इस तरह से बनेगा और y इक्वल x बार 6 का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोट करो तो एज n increases the graph gets flatter near 0 and steeper beyond x mod equal 1। ठीक है, beyond x mod equal 1 से मुराद है in the region x mod is greater than equal to 1। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो है वो ग्राफ जो x की वैल्यू जो n की वैल्यू बड़ी होती गई है तो हमारे पास जो ग्राफ्स हैं वो 0 के करीब थोड़े से फ्लैट हो गए हैं और इस रीजन में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टीप होते गए हैं। तो अब हम n जब ऑड है उस केस में देखते हैं कि किस तरह के ग्राफ बनते हैं। सो से फॉर एग्जांपल ये ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो और ये 0.1 है, ये -1 है, ये 1 और -1 है, इनको मैं मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, तो अगर तो ये ग्राफ जो है, अच्छा वो लिख चुकी हूँ, तो एक ग्राफ जो ऐसे बनेगा, लेट मी से कि दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल x पावर 5। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये y इक्वल x पावर 7 का ग्राफ है। ठीक है, रफली ऐसे बनेंगे, फॉरगिव माय ड्राइंग। अच्छा, यहाँ पे भी यही वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो देखने को मिलती है कि एज n increases the graph gets flatter near 0 and steeper beyond x mod equals 1। अच्छा, अब इन दोनों केसेस में हम डोमेन और रेंज देखते हैं कि वो क्या होगा। सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन इक्वल्स, इस केस में n इज इक्वल टू इवन के केस में हम लोग नेगेटिव x से नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक x की कोई भी वैल्यू फंक्शन में पुट कर सकते हैं। इट वोंट रिजल्ट इन एन अनवांटेड आउटपुट। ठीक है, अनवांटेड आउटपुट्स हमारी कौन सी हैं, या तो अनडिफाइंड आ जाए, या इनडिटर्मिनेट आ जाए, या कॉम्प्लेक्स नंबर बने। तो इन तीनों में से we don't get any one of these cases, जो कि any of these three cases। तो ये यहाँ पे डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक बनती है, और रेंज जो है वो हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, विद 0 इंक्लूडेड। अच्छा, अब ये जो मैंने राउंड ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं, इनका क्या मतलब है? लेट्स जस्ट लुक एट दैट थोड़ा सा। हमारे पास से फॉर एग्जाम्पल u belongs to this certain range or this certain interval। ठीक है, तो इसको मैं इस अंदाज से भी लिख सकती हूँ कि u is greater than a and less than b। तो ये जो राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट से मुराद ये है कि द नंबर written next to the round bracket is not included, but the number right very next to this certain number or very previous to this certain number would be included। कह लो कि मैं इसी को नंबर लाइन पे भी बनाती हूँ। अगर ये a है, ये b है, ये नंबर लाइन है आपके पास, तो नंबर लाइन पे मैं इसको कुछ इस अंदाज से बनाऊंगी कि a इंक्लूडेड नहीं है, b भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इनके बीच जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड है। तो एक और एग्जांपल लेती हूँ। लेट मी से u belongs to a, b
ठीक है, तो अब ये वाले इंटरवल है, इस इंटरवल को मैं किस तरह से रीड करूंगी? इट इज दिस वे, u इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। तो ये इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये a है, ये b है, एंड u हमारा a एंड b इंक्लूसिव, इनके बीच कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो जिस अंदाज से मैंने यूज किए हुए ब्रैकेट्स को, उस केस को भी देख लेते हैं। उससे मुराद ये है कि u इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन b, ठीक है। और इसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो मैं कुछ इस तरह से करूंगी, दिस इज a, दिस इज b, एंड a is included but b is not included, and everything else between a and b is included, every other real number। तो ये तो डोमेन और रेंज होगी हमारे पास फॉर n इक्वल्स इवन केस। n इक्वल्स ऑड केस के लिए हमारे पास डोमेन जो है वो बन रही है नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो इन दिस फंक्शन। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है x की कि जो कि मुझे अनवांटेड आउटपुट दे। और रेंज जो है मेरे पास यहाँ पे रेंज भी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी एज एन आउटपुट मिल सकते हैं, हमें जीरो भी मिल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी, आई कैन गेट एनीथिंग एज एन आउटपुट, इट्स क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ। तो ये था हमारा पहला केस। अब हम आते हैं केस बी की तरफ। केस बी, अच्छा, हमारे पावर फंक्शंस की शक्ल कुछ इस तरह की है, और हमारा सेकंड केस कहता है कि a इज इक्वल टू 1/n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारे पास बन जाएगा y इक्वल्स x पावर 1/n, ठीक है। तो इट विल बी x nth रूट ऑफ x। सो इसको हम रूट फंक्शन भी कहते हैं। रूट फंक्शन इज अ स्पेशल type of a function, of a special type of power function, ठीक है। और अगर n इज इक्वल टू 1 है तो मेरे पास दोबारा वही केस बन जाएगा y इज इक्वल टू x वाला जो हम देख चुके हैं पहले। तो लेट अस सी फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और मैं देखती हूँ कि जब n इवन होगा तो क्या होता है और जब n ऑड हो तो क्या होता है। सो हम देख रहे हैं फॉर n इक्वल इवन and n equal odd, और साथ में हम देख रहे हैं n greater than equal to 2 केस। अच्छा, तो अगर तो n even है तो we get a graph of this sort. Say this is a graph of y is equal to x power 1/2, और अगर n odd है तो we get a graph of this sort. Say y equals x power 1/3, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो इस केस में n इवन के केस में मेरे पास जो डोमेन है वो बन रही है। अब यहाँ पे मैं x की कौन कौन सी वैल्यूज डाल सकती हूँ फंक्शन में? लेट मी सी। आई कैन if I put, so I have y equals x power 1/2. If I put, I can clearly see that if I put a negative number, if I substitute x to be some negative number, so what I would get is a square root of a negative number. But this would give me square root minus 1 times some number. And square root minus 1 is not defined, or even if you know that it is equal to iota, but we're dealing with within the real numbers. We're not going to deal with the complex numbers. वो complex analysis में बात चली जाती है। तो हम लोग real functions की बात कर रहे हैं, complex functions की बात नहीं कर रहे। तो और हम जो है वो रियल प्लेन पे भी इसको प्लॉट भी नहीं कर सकते आयोटा को। तो इसलिए हमारे पास
x की हर वो वैल्यू पुट की जा सकती है इन दिस फंक्शन अदर देन नेगेटिव वैल्यूज। तो डोमेन जो है मेरे पास बन जाएगी 0 इंक्लूसिव, ठीक है, 0 भी डाला जा सकता है, रूट ऑफ 0 इज 0, ठीक है, एंड ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स अप टू इंफिनिटी, ठीक है, ये डोमेन हो जाएगी इसकी। और इसी की रेंज जो है वो मेरे पास रूट ऑफ एनी नंबर और एन इवन रूट ऑफ एनी नंबर, ठीक है, इवन nth रूट ऑफ एनी नंबर, यानी कि फोर्थ रूट कह लो या सिक्स्थ रूट कह लो या स्क्वायर रूट ले लो, इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो इसकी रेंज भी ये है। ओके, सो अगर मैं अब ऑड केस में आके बात करूं तो ऑड केस में मेरे पास डोमेन जो है वो आई कैन पुट इन एनीथिंग, आई कैन पुट इन एनी नंबर फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो दैट वुड बी माय डोमेन एंड माय रेंज। I can get any number from negative infinity to infinity, so that would be my range. अब मैं तीसरा केस देखती हूँ, केस सी। केस सी हम लोग अभी तक पावर फंक्शंस की बात कर रहे हैं। सो पावर फंक्शंस में दो केसेस देख चुकी हूँ। तीसरा केस मेरा ये है कि a is equal to n but n is a negative integer, ठीक है। तो अगर n जो है नेगेटिव इंटीजर है तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, y is equal to x power n, which can further be written as x power negative m if I say n equals negative m, and if n is a negative integer then m is a positive integer. तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 1/x power n। तो अब मैं इस तरह के फंक्शंस के साथ डील करने लगी हूँ। तो let's see when m is even तो क्या होता है, and let us see when m is odd फिर क्या होता है। तो m is equal to even के केस में मेरे पास इस तरह से ग्राफ्स बनते हैं, एंड m is equal to odd के केस में मेरे पास यूं ग्राफ्स बनेंगे, ठीक है। ये x axis, y axis, x axis, y axis. The domain in this case, in m is equal to even case, you can see that it's okay, so हम निकालते हैं, प्रॉपर तरीके से निकालते हैं कि डोमेन और रेंज क्या है। ग्राफ से नहीं देख रहे हम, क्योंकि ग्राफ तो मैंने बना के दे दिए ना। आपको अगर इक्वेशन दे दी जाए और पूछा जाए इसकी डोमेन रेंज बताओ तो आपको तो नहीं पता ना कि इसका ग्राफ कैसे है, जब तक कि आपको प्रॉपर ग्राफिंग ना आती हो। अच्छा, तो y इक्वल्स x पावर m, ये हम लोगों की इक्वेशन है। हमें ये पता है कि we do not want y to be we do not want y to be infinite, that is undefined. We do not want y to be an indeterminate form, ठीक है। indeterminate forms और कौन कौन सी होती हैं वो मेरे पास हो गई, एक तो 0/0 है, infinity by infinity, infinity minus infinity, 0 power 0, 1 power infinity, infinity power 0 and 0 times infinity। अच्छा, अब आप में से किसी का सवाल ये हो सकता है कि 1 power infinity जो है वो indeterminate कैसे है, मतलब मैं 1 times 1 times 1 infinite times भी कर लूं तो I would get 1। तो इस सवाल को अपने जहन में पकड़ के रखिएगा, हम इस पे वापस आएंगे और
हम इस पे वापस कब आएंगे, जब हम लिमिट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद मैं इस सवाल का जवाब दूंगी। वैसे ये सवाल मैं छोड़े जा रही हूँ, अगर किसी और को इसका जवाब मिलता है तो आप लोग भी डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ, बट आई वुड गिव यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन आई जस्ट लेट आउट हियर once we introduce limits। तो अच्छा, और इसके अलावा मैं नहीं चाहती कि y अनडिफाइंड हो या y की कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो या y में ये वाली टर्म आ रही हो दैट इज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ठीक है, तो अगर मैं देखूं, अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर देती हूँ, ठीक है, तो 1 over x power m becomes 1 over 0 which becomes infinity which becomes undefined। तो इसका मतलब ये है कि x पावर m जो है वो 0 नहीं हो सकता। x पावर m 0 कब है? x पावर m is 0 when x equals 0। तो x equals 0 जो है वो हमारे पास इन डोमेन में शामिल नहीं हो सकता, डोमेन की वैल्यूज में। तो इसके अलावा देयर इज no other unwanted value of y, ठीक है, by putting any other value of x। तो हमारे पास डोमेन में जो वैल्यूज आती हैं वो आती हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 0 को एक्सक्लूड करना है। तो 0 कैसे एक्सक्लूड करेंगे? हम 0 से बिल्कुल पहले तक की रियल नंबर को कंसिडर करेंगे, तो इट वुड बी माइनस इन्फिनिटी टू 0 एक्सक्लूडिंग 0 यूनियन 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमारी डोमेन है। और रेंज क्या है? हम चूंकि इवन m इवन है, तो हम अगर x नेगेटिव भी पुट करते हैं, x पावर m जो है हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर m टू बी इवन। ठीक है, तो रेंज जो है वो हमारी 0 से लेके, अच्छा 0 क्यों नहीं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगी, लेकिन अब हम देखते हैं कि 0 इंक्लूडेड होगा या एक्सक्लूडेड होगा। तो क्या y 0 हो सकता है? लेट्स सी। सो y इक्वल्स 1 ओवर x पावर m। अगर मैं कहती हूँ कि y इक्वल्स 0, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग, मैं इनवर्स ले लेती हूँ इस साइड का भी और इस साइड का भी। तो इफ आई टेक द इनवर्स, तो ये बन जाएगा x पावर m ओवर 1 इक्वल्स 1 ओवर 0, or I can say x power m equals infinity, but I can never put x equals infinity in the equation. I cannot put x equals infinity in the equation because infinity is something undefined, it's not a real number। ठीक है, तो इस वजह से I can also never get the output 0, तो 0 भी excluded होगा हमारी रेंज से, तो this would be our range। ठीक है, और ये अब आप ग्राफ के साथ भी इसको टैली करो तो आपको नजर आ रहा है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक सारी वैल्यूज आर गिविंग सम आउटपुट ऑफ y, लेकिन एट 0 वी गेट एन एसिम्पटोट। एसिम्पटोट्स जो है वो सर्टेन लाइंस होती हैं ग्राफ में कि जिनको आपका ग्राफ अप्रोच जरूर कर रहा होता है पर कभी टच नहीं करता। ठीक है, so our graph would never touch the y-axis, and in correspondence to x is equal to 0 we won't get a value। ठीक है, तो और इसी तरह से our graph also never touches the x-axis and we never get the output of y to be equal to 0। अच्छा, अब मैं इसी तरह इसकी डोमेन और रेंज मैं भी लिख देती हूँ। ठीक है, एंड देन आप लोगों ने सोचना है कि क्या इसकी डोमेन और रेंज इसी अंदाज से लिखी जानी चाहिए थी। सो नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 एक्सक्लूडेड। ठीक है, ये m इज इक्वल टू ऑड केस के लिए मैं लिख रही हूँ। ठीक है, m इक्वल्स ऑड केस, यूनियन 0 टू
infinity, और इसकी रेंज भी है ये negative infinity to 0, 0 excluded, union 0 to infinity. ठीक है, so we have 2 more minutes, तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि polynomials of degree n किस तरह से लिखे जा सकते हैं. So we have, say for example, I'm writing a general equation, ठीक है, p of x equals an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 plus so on up to a1x plus a naught. ठीक है, तो यहाँ पे let me just put in a certain degree and also tell you, for example, मैं degree 3 का polynomial लिखने जा रही हूँ, तो that it would be something like this: a3 x power 3 plus a2 x power 2 plus a1 x power 1 plus a0. ठीक है, और an जो है यहाँ पे वो कोफिशिएंट है of x power n. ठीक है, a1 कोफिशिएंट x power 1 का, a2 कोफिशिएंट x power 2 का. ये कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एग्जांपल्स. आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हो इसकी. अच्छा, अब हम लोग ग्राफ्स इन जनरल एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन देखते साथ मतलब इतने फोरी नहीं बता सकते कि क्या होंगे, लेकिन आप एक चीज जरूर बता सकते हो, वो ये कि उस पॉलिनोमियल के ग्राफ में कितने बेंड्स हैं. ठीक है, तो ग्राफ ऑफ p of x bends n minus 1 times if p of x is a polynomial function of degree n. ठीक है, तो n minus 1 times वो बेंड करेगा. तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ. से फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है x cube minus x plus 1. तो क्योंकि this is a third degree polynomial equation, तो it will bend 2 times. तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होगा. और अब let's say कि we have a polynomial x power 4 minus 3x square plus x. क्योंकि इसकी डिग्री 4 है तो it will bend 3 times. 1 time, second time, third time. तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा. अच्छा, अब हम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल देखते हैं. सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है which is also known as the parabola. ठीक है, so like this is a one time bent curve. ठीक है, और एक इक्वेशन में एग्जाम्पल इक्वेशन लिख देती हूँ. वो शायद इस ग्राफ की ना हो क्योंकि इस ग्राफ की मेरा हाल है. चलो यूं बना देते हैं ये ग्राफ, अब बेहतर अप्रोक्सीमेट हो जाएगा. So it's x square plus x plus 1. Say for example, this is an example of a parabola. और जो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल्स होती हैं, they are lines, they are simply lines. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. ठीक है, और ये इक्वेशन फॉर एग्जांपल y is equal to x plus 3 है. तो this is a straight line equation. All right, so in the next lecture we would be looking at what rational functions are, and are there any other types of algebraic functions other than these or not, and then we would move on to transcendental functions. Thank you.